হাই, সকলকে শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি। আমি সন্ধু, আমার সঙ্গে রয়েছে অভিরূপ। আর আপনারা দেখছেন দ্য ক্যালকাটা মিররের আড্ডা ৮। আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি থাকছেন রঞ্জিত বাজাজ। আপনারা জানেন যে দীর্ঘ 2-3 দিন ধরে একটা অদ্ভুত রকম ভাবে বিতর্ক চলছে এবং গতকাল মোহামেডানের কোচ ইয়ান লকে স্যাক করা হয়েছে। এবং শুধু স্যাক নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিত বাজাজের নামও কোথাও না কোথাও জুড়ে গিয়েছে। এবং সেটা নিয়ে কাল রাতে একটি টুইট হয়েছে, যে টুইটটা আমাদের ময়দানের ফুটবলের জন্য খুব একটা সুবিধাজনক নয়। মানে আমরা এরকম চাই না এরকম কোনো সমস্যা তৈরি হোক মাঠে। তো আজকে আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবেন রঞ্জিত বাজাজ। যে কোশ্চেন্স গুলো আমাদের মনে ঘোরাফেরা করছে, সেই কোশ্চেন্স গুলো আমরা তার কাছে রাখবো এবং চেষ্টা করব যে কেন এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে, কিসের জন্য সমস্যা তৈরি হচ্ছে, সেই সমস্যাগুলোকে বোঝার জন্য। তার আগে একটু জানাই, আমাদের আজকে একটু দুঃখের দিন, কারণ আজকে সকাল বেলাতেই আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রাক্তন ফুটবলার, ভারতীয় ফুটবলার কার্লটন চ্যাপম্যানকে। এবং সত্যি কথা অর্থে মাত্র 49 বছর বয়সে তার মৃত্যুটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। এবং সেই কারণেই আমরা আজকে একটু শুরুতেই একটু আমাদের দুঃখ মথিত সময়। এবং অভিরূপ, আজকের দিনে কার্লটন চ্যাপম্যানের মৃত্যুটা মানে সত্যি হঠাৎ করে সকালবেলা যখন খবরটা দেখলাম, মানে খুবই খারাপ লাগলো খবরটা আর কি। হ্যাঁ, দেখো, ময়দানের ফুটবলের জন্য একটা দুঃসময় চলছে। আমি বলতে পারি যে পরপর দুটো খারাপ খবর এলো আমাদের সামনে, এবং আজকে যেটা আমরা জানতে পারছি যে ভোর 5টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রাক্তন ভারতীয় মিডফিল্ডার কার্লটন চ্যাপম্যানের। এবং তার তুমি যেমন বললে যে বয়স ছিল মৃত্যুকালে 49 বছর। এবং কার্লটন চ্যাপম্যানকে মানে আমরা যেভাবে জানি যে ওনার খেলা এবং ওনার স্টাইল, একসময় একই সঙ্গে বাইচুং ভুটিয়াদের সঙ্গে উনি মাঠ কাঁপিয়েছেন। এবং 1993 সালে প্রথমবার উনি গায়ে তুলে নেন ইস্ট বেঙ্গলের জার্সি। এবং তারপর চলে যান জেসিটিতে। যাই হোক, কিন্তু 1996 সালে উনি জাতীয় লিগে ছিলেন এবং 14টা ট্রফি ওনার আন্ডারে জিতেছিল দল। সুতরাং এটা একটা বড় বড় পাওনা এবং একজন বড় মাপের ফুটবলার কার্লটন চ্যাপম্যান। এবং কেই বা ভুলতে পারে ওনার ইরাকের ক্লাবের বিরুদ্ধে সেই সুন্দর হ্যাটট্রিকটা। যদি আমরা মনে করার আজকে চেষ্টা করি, আমরা অবশ্যই সেই সুন্দর স্মৃতিগুলোর মধ্যেই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করব। একজন মানুষের খেলাটা তো রয়ে যায়, একজন মানুষের এত বড় যখন মানুষ, তার কাজগুলোই রয়ে যায়, কাজগুলোই আমাদের মতো ফ্যানেদের মনে দাগ কেটে যায়। আমরা যারা ফুটবল ফ্যানেটিক তারা বারবার সেই কাজগুলোতেই ফিরে যাব এবং খেলাটাতেই ফিরে যাব। তো আমরা দেখেছি যে 2001 সালে অবসর নেওয়ার পরেও উনি কিন্তু ফুটবল থেকে বেরিয়ে যাননি এবং কোচ হিসেবে ফিরে এসেছেন এবং অসাধারণ কাজ করেছেন কোচ হিসেবে। বিশেষ করে ধরো 2002 সাল থেকে উনি যখন কোচ হিসেবে কাজ শুরু করেন, তখন অসাধারণ একটা ফুটবল আবহ তৈরি করেছিলেন উনি। এবং 1998 সালে উনি আবার লাল হলুদে ফিরে আসেন এবং 2001 সালে ওনার নেতৃত্বে একদিক থেকে দেখতে গেলে ইস্ট বেঙ্গল জাতীয় লিগ জেতে। সেটা কিন্তু একটা বড় পাওনা বেঙ্গলের জন্য। এবং এশিয়ান উইনার্স কাপে তোমার ইস্ট বেঙ্গল 6-2 গোলে হারিয়েছিল আল জাওরাকে এবং সেখানেই উনি ওনার যে বিখ্যাত হ্যাটট্রিক, সেই বিখ্যাত হ্যাটট্রিকটি করেন এবং প্রায় 1 দশক উনি জাতীয় দলের সদস্য ছিলেন। তো ওনার মৃত্যু সত্যি বেশ কষ্টকর, মেনে নেওয়া যায় না। এবং আমরা দেখছি যে ওনার সতীর্থ, সেই অর্থে আমাদের সতীর্থ না, সেই অর্থে প্রাক্তন ফুটবলার সুভাষ ভৌমিকও বলেছেন যে খুব খারাপ ভাবে শুরু হলো দিন। কার্লটন চ্যাপম্যান আর নেই, শুধু সিংহ হৃদয় ফুটবলারই ছিল না, ওর হৃদয় ছিল সোনার মতো। ওর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। এই যে সিংহ হৃদয় ফুটবলার নয়, ওনার হৃদয়ে ছিল সোনার মতো, এই যে কথা সুভাষ ভৌমিকের মুখ দিয়ে আমরা শুনতে পাচ্ছি, এটার খুব গুরুত্ব আছে। এবং প্লেয়ার হিসেবে শুধু নয়, ওনার যে একজন মানুষ সত্যি একজন বড় ছিলেন, সারা জীবন ফুটবলকে ভালোবেসেছেন। অভিরূপ, সন্তুদা বলো। তো আমরা সেই জায়গাতেই বলছি আর কি, সত্যি আজকে দিনের শুরুটা খুব খারাপ ভাবে হয়েছে এবং এই দিনের খারাপটা মনে হয় গতকাল থেকে চলছে। গতকালও আমরা আলোচনা করেছিলাম যে হঠাৎ করে মোহামেডানের 4-1 গোলে জিতে যাওয়ার পর হঠাৎ করে আমরা শুনতে পাই যে তার কোচকে স্যাক করা হয়েছে। এবং কালকে আমরা এটা নিয়ে দীর্ঘায়িত একটু আলোচনাও করেছি।
তো সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে কাল সকালবেলা হ্যাঁ আজকাল কালকে পত্রিকায় আমি শুনলাম যে আজকাল পত্রিকা, কারণ যেটা নিয়ে একটু সানসানি ব্যাপার হচ্ছে, তো আজকাল পত্রিকাতেই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে লেখা হয়েছিল যে হঠাৎ করে রঞ্জিত বাজাজ এসে টিম যে হোটেল রয়েছে সেই হোটেলেই উঠেছিল, এবং তার হোটেলেই ওঠা নিয়ে একটা সবার হুম মধ্যে সানসানি ব্যাপার তৈরি হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে যেটা শোনা যাচ্ছে যে উনি একটা নতুন ক্লাব পত্তন করেছেন আর কি, উনি পাঞ্জাব থেকে ছেড়ে দিয়েছেন এবং সেখান থেকে নতুন ক্লাবে উনি পতন করেছেন, এবং সেই ক্লাবেই হয়তো প্লেয়ার ভাঙানো নিয়ে এরকম একটা কিছু ব্যাপার স্যাপার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সত্য, এর কোনো ডকুমেন্টস এখনো আসেনি। মানে আমি বারবার একটা কথা হ্যাঁ বলছি যে এবং এর কোনো এখনো এবং ডকুমেন্টস তুমি যদি দেখো যে রাজীব বাজাজ কিন্তু বেসলেস অ্যালিগেশনের জন্য কেসও করেছে অলরেডি, তার লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি যারা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে উনি এগোচ্ছেন এবং মামলাও করছেন। মোহামেডানের বিরুদ্ধে মামলা করছেন এবং আজকাল পত্রিকার বিরুদ্ধেও। সুতরাং এই যে অ্যালিগেশনটা, এটা কতটা হুম। এখনো পর্যন্ত বেস আছে এর অ্যালিগেশনটা, সেটা বোঝা যাবে যখন এটা কোর্টের সামনাসামনি যাবে। হ্যাঁ, এবার সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই আমাদের কলকাতার ফুটবলের এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, মানে কিছুদিন আগে আমরা হুম ইস্ট বেঙ্গলকে নিয়ে যা দেখলাম, মানে ইস্ট হুম বেঙ্গলের ইনভেস্টার্স বনাম ইস্ট বেঙ্গলের ক্লাব মেম্বার্স, এই যে একটা অদ্ভুত রকম লড়াই চলছিল আর কি। তো এই লড়াইগুলো মানে ক্রমশ মাঠে একটা একটা বিরূপ প্রতিভা, কারণ দেখো একদিকে করোনা এক অদ্ভুত ভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, এবং সেখানে হুম দীর্ঘদিন প্রায় 7 মাস 8 মাস আমরা মাঠের বাইরে। এই মাঠের বাইরে থাকার ফলে মাঠের ভেতরে, মানে অর্থাৎ ক্লাবের ভেতরে যে সমস্যাগুলো, এই সমস্যাগুলো কোথাও যেন একটু জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, এবং যেটা খুব স্বাভাবিকভাবে কলকাতা ফুটবলের জন্য, মানে কলকাতা ময়দানের জন্য খুব একটা আশুপ্রদ নয়, আর এবার সুপ্রদ নয় বিষয়টা। তো আমরা আমাদের দর্শকদের বলবো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের অতিথিকে আমরা সামনে নিয়ে আসছি। ওনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গিয়েছে, উনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন্স থেকে থাকে, মানে কালকের এই ঘটনা বা যে ঘটনাগুলো আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, সেই প্রশ্নগুলো আপনারা আমাদের কমেন্ট বক্সে করুন, কারণ আপনাদের এই প্রশ্নগুলোই আমরা আমাদের গেস্টকে করব। তো সুতরাং আপনারা আপনাদের মনে তার যে মধ্যে কোশ্চেন্স অবশ্যই গুলো আসছে, সিলেক্টিভ কোশ্চেন্স। হ্যাঁ অবভিয়াসলি সিলেক্টিভ হ্যাঁ তার কোশ্চেন্স, কারণ আমাদের দেখতে হবে যে কোন কোশ্চেন্স গুলো মানে গুরুত্বপূর্ণ, মানে সেই জায়গাগুলোকে আমাদেরকে বজায় রাখতে হবে। হুম আর এদিকে আমাদের যেটা বলার ছিল যে এদিকে আইপিএল খেলা হচ্ছে, তুমি আইপিএল নিয়ে একটুখানি জাস্ট একটা টাচ দিয়ে যাও, কারণ আমরা তারপরে আবার ফুটবলে ঢুকবো আর কি। হ্যাঁ দেখো আইপিএল, হ্যাঁ আইপিএল শুরু হয়ে গেছে এবং আজকে প্রথমে ব্যাট করছে তোমার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। তো এই যে ব্যাঙ্গালোরের ব্যাটিং কলকাতার বিরুদ্ধে, এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আজকে যে পিচ রয়েছে সেই পিচে ব্যাঙ্গালোর কতটা রান তুলে নিতে পারে। এবং গতদিন থেকে আমরা যেটা দেখছি যে বিরাট কোহলি কিন্তু ফর্মে ফিরেছে, এবং বিরাট কোহলি রানের হম। মধ্যে ফিরে আসাটা ব্যাঙ্গালোরের জন্য ভীষণ বড় একটা সুখবর। আমার মনে হয় যে এবং গতদিন যেভাবে উনি শেষে অ্যাক্সেলারেট করেছেন, তো ব্যাঙ্গালোর ফ্যান্সরা অবশ্যই চাইবে যে আজকেও তিনি একই রকম ভাবে অ্যাক্সেলারেট করুন এবং আজকে একটা বড় রান তুলে নিক। আর উল্টো দিকে কলকাতার যে বোলিং রয়েছে, কলকাতা চাইবে যে তার বোলিং দিয়ে সম্পূর্ণত ব্যাপারটাকে আটকে দিতে। এবং কলকাতার ক্ষেত্রে দেখো প্যাট কামিন্স কিন্তু আজকে প্রচন্ড একটা বড় ভূমিকা প্লে করবে বলে আমার মনে হচ্ছে। কারণ প্যাট কামিন্স এর হম। বিরুদ্ধে অবশ্যই আহ, যে সুইং বোলিংটা প্রথম দিকে একটু হেল্প পাওয়া যাবে পিচে, সেই পিচের হেল্পটাকে যদি আজকে প্যাট কামিন্স কাজে লাগিয়ে দিতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় যে দেবদূত পাডিক্কাল বা এই ধরনের নতুন প্লেয়ারদের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা হবে। অবশ্যই আরেকটা জিনিসও আমরা দেখবো যে প্যাট কামিন্স কিভাবে তার দেশীয় যিনি রয়েছেন প্লেয়ার অ্যারন ফিঞ্চ, তার বিরুদ্ধে কিভাবে বল করেন এবং অ্যারন ফিঞ্চের বিরুদ্ধে তার রণনীতি কি হয়। এবং আজকে একটা কিন্তু হম। খারাপ খবর রয়েছে, যেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণত পাবো না আজকে আন্দ্রে রাসেলকে, কারণ তার পায়ের চোট আচ্ছা। সম্ভবত হম। এখনো সবটা ভালো হয়নি। তো তিনি টিমে আছেন কিন্তু সম্পূর্ণত পাবো না। আর এখন লাস্ট পাওয়ার খবর অনুযায়ী তোমার 67 রানে 1 উইকেট হারিয়ে ব্যাট করছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর।
আমাদের দর্শকরা কোশ্চেন্স করা শুরু করেছে, কোশ্চেন্স গুলো আসতে থাকুক। আমি স্যারের জন্য ওয়েট করছি। স্যার এখনো আমাদের সঙ্গে জয়েন করেননি, উনি খুব শীঘ্রই আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে একটা জয়েন খবর করবেন। দিয়ে রাখি, একটা হুম। জাস্ট খবর দিয়ে রাখি, আন্দ্রে রাসেল বল করছেন, আন্দ্রে রাসেল বল করছেন এবং আচ্ছা। খুবই শুভ সংবাদ এবং খুবই সুখবর ফ্যানেদের জন্য যে উনি একটা উইকেটও নিয়ে নিয়েছেন। উনি একটা উইকেট নিয়েছেন 15 রান দিয়ে 1 ওভার 4 বল এবং ফিঞ্চ ব্যাট করছে আপনার 33 রানে 23 বলে। সুতরাং ভালো শুরু, কিন্তু দেবদূত পাডিক্কালকে বোল্ড করে ফেরত পাঠিয়েছেন আন্দ্রে রাসেল। উনিও 23 বলে 32 রান করেন, 4টি 4 এবং 1টি 6 মেরে। সুতরাং এখন বিরাট কোহলিকে দেখার জন্য মুখিয়ে আছে ফ্যানেরা। ঠিক আছে, মিস্টার বাজাজ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে জয়েন করবে। তো আজকে আমাদের মধ্যে বাবাই লিখেছে গুড ইভিনিং, আমাদের আগের দিনের উইনার হয়েছিল, বেস্ট ফ্যান অফ দ্য ডে। হ্যাঁ, তো বাবাইকে আমরা যাচ্ছি, হাই বাবাই, ভালো থেকো, তুমি যে আমাদের সঙ্গে রয়েছো আমাদের খুব ভালো লাগছে। তো আমাদের আলোচনা চলছে ফুটবল নিয়েই, এবং আজকে আমাদের মেন যে আমাদের সাবজেক্ট ছিল সেটা হচ্ছে বিতর্কের ভেতরের কথা এবং বিতর্কের বাইরের কথা। তো বিতর্কের ভেতরের কথা আমরা তো ঢুকবো, মিস্টার বাজাজ এসে গেলেই আমরা ওনার সঙ্গে কথা বলবো, যখন তখন ভেতরের কথাগুলো আমরা জানতে পারবো। তো বাইরের যেগুলো রিমার্কস চলছে সেই রিমার্কস গুলো নিয়ে আরেকবার একটু চালিয়ে নিই। সেটা হচ্ছে গতকাল মোহামেডানের কোচ ইয়ান লকে স্যাক করা হয়েছে মোহামেডানের তরফ থেকে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কোথাও একটা মিস্টার বাজাজের নাম জুড়ে গিয়েছে এই কন্ট্রোভার্সির সঙ্গে। এবং এই কন্ট্রোভার্সিটাকে আমরা কখনোই চাই না যে কন্ট্রোভার্সিটা বাড়ুক অমুক, আমরা চাই কন্ট্রোভার্সি সবসময় মিটে যাক, কারণ প্রত্যেকের মনে একটা কোশ্চেন্স থাকে যে কি ঘটনা ঘটেছিল। তো আমরা মিস্টার বাজাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, উনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবেন, এবং আমাদের যে কোশ্চেন্স গুলো আমাদের মনে রয়েছে সেই কোশ্চেন্স গুলো আমরা করব। তো অভিরূপ, এই মুহূর্তে তোমার কি মনে হয় যে মানে খেলার যে গতি প্রকৃতি রয়েছে আর কি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে সারা ভারতবর্ষ জুড়েই নতুন করে আবার, যেমন আমাদের আই লিগের কোয়ালিফায়ার শুরু হলো, মানে এই আই লিগ কোয়ালিফায়ার দিয়ে আমাদের 7 মাস পরে নতুন করে আবার ময়দানে ফুটবল ফেললো আমাদের প্লেয়াররা। তো ওভারঅল অল ওভার ইন্ডিয়াতে ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, মানে যেভাবে করোনা বাড়ছে তাতে ফুটবলের ভবিষ্যৎটা কি হতে পারে? তোমার কি মনে হচ্ছে যে মানে খেলাধুলা কি আর সত্যি এইভাবে আমরা মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে পারবো, না এরকম ভাবেই থাকবে? না দেখো, এটা অবশ্যই নয় যে মাঠে গিয়ে আর খেলা দেখতে পারবো না, এরম আশা কোনো দর্শকই করবেন না। কিন্তু হ্যাঁ, এই করোনা আবহে খেলা অনেক বদলে গেছে। এবং দেখো, আমরা যেটা ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও দেখতে পাবো, ফুটবলের ক্ষেত্রেও দেখতে পাবো যে ফ্যান্সদেরকে অন্যভাবে নিয়ে আসার একটা চিন্তা চলছে। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে তুমি দেখবে যে ওখানে ফ্যানের বোর্ড তৈরি করা হয়েছে, হ্যাঁ, এবং যেখানে লাইভ ফ্যানেরা ওখানে ইন্টারাক্ট করতে পারছেন। অবশ্যই ঘটনা হচ্ছে যে ফুটবলও বদলেছে এবং আমাদের ময়দানের ফুটবলও অনেকটাই বদলেছে, কারণ এই একেবারে ফাঁকা স্টেডিয়ামে ম্যাচ দেখে আমরা তো কেউ অভ্যস্ত নই। কিন্তু করোনার পরিস্থিতিতে আমাদেরকে সেই এটা মেনে নিতে হয়েছে। এবং দেখো, সকলেরই স্বাস্থ্য সবার আগে, প্লেয়ারদেরও স্বাস্থ্য সবার আগে, ফ্যানেদেরও স্বাস্থ্য সবার আগে। সুতরাং প্লেয়াররা খেলতে পারছেন, আমরা খেলা দেখে টিভিতে হোক বা মোবাইলে হোক আমরা খেলা দেখে মজা নিতে পারছি। আমার মনে হয় সেটাই সব থেকে বড় ব্যাপার। এবং মজার ধরনটা কিন্তু বদলায়নি। যেমন ধরো, এই তুমি আমি হুগলি থেকে, তুমি কলকাতা থেকে, পাশাপাশি বসে তো আলোচনা করছি, মজার লেভেলটা বদলায়নি। হয়তো হ্যাঁ, হাতে হাত রেখে দুজনে মিলে একটা চিয়ার করা হচ্ছে না কোনো টিমের বিরুদ্ধে। আমাদের মধ্যে মিস্টার অভিরূপ, আমি রাখছি, আমাদের মধ্যে মিস্টার বাজাজ উপস্থিত হয়েছেন, আমি ওনাকে স্ট্রিমে নিয়ে নিচ্ছি। ঠিক আছে। হ্যালো হাই, স্যার। গুড ইভিনিং স্যার, গুড ইভিনিং। Hi, hi, how are you guys? Hi, everybody. Hi, bhai, how are you? Hi, everybody. ठीक हो? हाँ हाँ ठीक ठाक आ रहा है ना सर, साउंड ठीक ठाक आ रहा है? ओके सर, तो हम लोग बातचीत में आगे बढ़ते हैं। तो एक र्यूमर स्प्रेडिंग हो रहा है, जो आप कल को ट्वीट किया था, और ट्वीट देखकर हम लोग को लगा कि कुछ भूचल चल रहा है ये कलकत्ता के मैदान पे और क्लब पे। क्या हुआ था सर, एक्चुअली क्या हुआ? चेंज हो गया भाई। अब जब मैंने वो ट्वीट किया है, उससे पहले स्टोरी जो बाहर आ रहा था कि उन्होंने बोला है कि रंजीत बजाज वो हायट में रहा है, तो इसका मतलब कोई मैच फिक्सिंग हुआ है। उसके बाद जब मैंने ट्वीट किया कि मैं एफआईआर करने लगा हूं, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट निकाला कि हमने तो ये बोला ही नहीं, हम तो ये बोल रहा था कि यान लॉ ने कोई रंजीत बजाज को स्क्रीनशॉट शेयर किया है और
अपनी टीम बनाता है, वो हमारी बात नहीं मानता है, मतलब कि मैनेजमेंट की वो बात नहीं मानता है यान लो, और वो अपनी टीम बना रहा है। तो अब उन्होंने ये स्टेटमेंट किया। सो बेसिकली मेरा कहना यही है, देखो आपने अपने एम्प्लॉय यान लो के साथ जो बात करनी है करो। आप किसी तीसरे बंदे को अंदर लेके आ रहे हो कि अगर आप उसका जाके पेज ही देख लेते, उसको पता लग जाता, सारे कलकत्ते को पता है कि मैं वहां पे ट्रायल करने आया हूँ, सारे कलकत्ते को पता है कि मैं 5 दिन से 5 अलग वेन्यूज पे हमने ट्रायल किए, 2100 बंगाली लड़कों ने, सीनियर बॉयज ने ट्रायल दिया, 2100 और ये पहली बार है कोई स्टेट, मेरा कोई सेकंड डिवीजन का क्लब नहीं है, ना मेरा कोई आई लीग का क्लब है, ना मेरा आईएसएल का क्लब है, ये मेरा नया क्लब शुरू किया है। हमने पहली चीज क्या करनी है, हमने अभी स्टेट डिवीजन सीनियर खेलनी है, स्टेट दिल्ली स्टेट लीग होती है जो, ये उसके लिए टीम। तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है ना सेकंड, मेरा ताल्लुक ये है कि हाँ लड़के साइन कराए। अच्छा वो कहते हैं मेरा लड़का कैसे हो गया भाई? वो सैम्यूल शडफ मिजोरम का है और मुनमुन मुंबई का है, मोइनुद्दीन खान कलकत्ते का है। हाँ हिमांशु जांगरा हरियाणा का है, वो मेरी एकेडमी से आया है, उसको कह सकते हो कि ठीक है मेरा लड़का है। अगर 1 साल के लिए आपको प्लेयर खेल गया तो वो किंग्सली को क्यों खिला रहे हैं? किंग्सली भी तो मेरा ही है। फिर जैसे सैम्यूल मेरा है और मुनमुन मेरा है, वैसे किंग्सली भी मेरा ही है। सो ये बात बोलनी बहुत गलत है, क्योंकि इन्होंने जो बोला कि मैं हायट में आके, अगर फिक्सिंग करना होता तो हायट में रह के करना है, मुझे चंडीगढ़ से बैठ के नहीं होता, उनके होटल में बैठ के करना है, और मेरे को जरूरी जाके वहां पे ट्वीट करना है कि मैं हायट में पहुंच गया हूँ, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और मैं अब फिक्सिंग शुरू कर रहा हूँ। तो ये बातें बड़ी स्टूपिड लगती हैं। अब यू नो आई एम सो हैप्पी कि मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल हैव गॉट आउट ऑफ दिस शिट, बिकॉज पहले मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल के साथ यही हो रहा होता था। देयर ऑफिशियल्स सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मोहम्मदन स्पोर्टिंग की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस की जगह उसकी ऑफ फील्ड के बारे में ज्यादा बातें हो रही है, एंड दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, यूज्ड टू बी द प्रॉब्लम विद कैलकाटा क्लब्स के ऑन फील्ड की जगह ऑफ फील्ड ऑफिशियल्स इतना ड्रामा करते थे कि people were not following the teams, they were following this drama. Whereas right now there should be no drama, they've got 2 matches, they've won 2 matches, they're on top of the table. Each time pe to you should be giving a lot of confidence to your team, to your coach, to your fans कि we are going to do it. इस टाइम पे माहौल खराब करने का टाइम तो बिल्कुल था ही नहीं, and I mean it's like shooting yourself in the foot. इतनी मुश्किल से मौका मिला है मोहम्मदन स्पोर्टिंग को क्वालिफाई करने का, इनफैक्ट इससे अच्छी टीम वो नहीं बना सकते थे जितनी उन्होंने बनाई है। सो इस टाइम पे दे शुड बी सपोर्टिंग द पीपल। अगर आपको सपोज अब ये बात कह रहे हैं कि उसने अपनी टीम खिलाई, अब मुझे ये बताओ कोच का काम क्या है? कोच का काम यही है कि टीम सेलेक्ट करके खिलाना। कोच ने 2 महीने से उनको प्रैक्टिस कराई है, उसने अपना सिस्टम सिखाया और उसको लगा जो उसका सिस्टम समझ सके उसको उसने खिलाया। अगर आप चाहते कि ये जो प्लेयर है ना खेले तो आपने साइन क्यों करने दिए? साइन भी वसीम अकरम ने ही साइन किया ना, साइन कॉन्ट्रैक्ट तो वसीम अकरम ही साइन करता है ना, तो क्यों साइन किया? अगर वो खिलाने नहीं थे प्लेयर तो साइन ना करते। अगर कोच को कोचिंग नहीं करने देनी थी तो कोच को ना बनाते, जो आप कोच लिया है उसको पहले से लगा लेते तो आपको प्रॉब्लम ही ना पड़ती, वो मैनेजमेंट की टीम ही खिलाता। और प्रॉब्लम यही है, कलकत्ता में ईस्ट बंगाल 14 साल से इसीलिए आई लीग टाइटल नहीं जीता, नो मैटर पिछले 2 साल के अलावा, क्योंकि द कोच नेवर यूज्ड टू मेक हिज टीम, ही नेवर यूज्ड टू बी इन चार्ज ऑफ सिलेक्शन, ही नेवर यूज्ड टू बी इन चार्ज ऑफ द प्लेइंग स्टाइल। एंड अगर ऑफिशियल्स ने आके जिनको फुटबॉल के बारे में, कोचिंग के बारे में नहीं पता इतना, उन्होंने ये करना है तो फिर वो खुद कोच लग जाए ना। दैट इज व्हाई AIFF एंड FIFA हैव मेड दीज रूल्स कि for being the head coach of a professional team you need to be an A license, you need to have basic study. इतना when Yan used to be with me, even though he's a young coach, जब मेरे साथ होता था यान पंजाब FC में, I used to tell him कि इसको खिला, उसने इतनी बार बोला कि नहीं सर ये आपकी बात ठीक नहीं है, इसकी वजह से नहीं ठीक है, and I used to back off. I can't tell my coach tomorrow नहीं मेरी बात मानो, because if I do that tomorrow if they lose then it's my fault na, I am interfering. What is the point of hiring a coach? यहाँ पे मिस्टर बजाज यहाँ पर हो रहा है, ये बात कर रहा है कि जो यन लो है वो आपके साथ बातचीत करके उसके बाद ही मोहम्मदन का जो 11 है वो चूज करता था, ये एक्यूज हो रहा है। नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। सी सुनो, मेरे को बाकी प्लेयर्स के बारे में मेरे को सिर्फ
जो प्लेयर मेरे साथ खेले हैं उनके बारे में पता है, मुझे बाकी प्लेयर्स के बारे में पता ही नहीं कुछ, ना मुझे विलिस प्लाजा के बारे में पता है, मेरे लिए कभी खेला ही नहीं है। और जो बाकी 6-7 प्लेयर उन्होंने पहले मैच में दे स्टार्टेड विद 4 एक्स पंजाब बॉयज, बाकी 7 प्लेयर तो मेरे को पता ही नहीं उनके बारे में, तो मेरे कहने पे थोड़ा शुरू किया। अब आपके पास चॉइस क्या है? चॉइस है कि जो लड़का, आई एम गिविंग एग्जांपल, सैमुअल शडप 2 साल उसने आईएसएल खेला, उसके बाद पिछली बार पंजाब एफसी खेला और we came second or third compared to East Bengal on goal difference, which that means हमारा बहुत अच्छा सीजन आया। Everyone was talking about Samuel Shadab. Same way मुनमुन लोगन 2 साल ISL खेला, उसके बाद हमारे लिए खेला, उसके बाद यहाँ आया। So they were the best people to play in those positions. In fact, they proved it. मुनमुन ने तो गोल किया 94th मिनट में। उसके बाद सैमुअल, everybody said the best match जो लड़का था वो सैमुअल था, क्योंकि उसने क्या पासिंग किया, क्या मूवमेंट किया, क्या प्रेसिंग किया। उसके बावजूद आप कर, अगर फिक्सिंग की बात होती, विलिस प्लाजा पे कोई नाम नहीं उठ रहा, उसने तो पेनल्टी मिस किया, मैं बोल सकता हूं कि विलिस प्लाजा ने किया। फिर ऐसे थोड़ा होता है फुटबॉल में यार, फुटबॉल में एवरीबडी हु प्लेज ट्राइज टू विन, नोबडी ट्राइज टू लूज। उसमें इफ समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग, सपोज व्हेन विल हिमांशु गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट और मुनमुन गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट? ओनली इफ दे प्ले वेल। इफ दे परफॉर्म बैडली इन सेकंड डिवीजन, यू थिंक उनको आई लीग में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? फॉरगेट अबाउट आईएसएल। कोई प्लेयर किसी की बात नहीं मानता। ये जो सारे प्लेयर आईएसएल के खेल रहे हैं सेकंड डिवीजन में, दे आर ओनली लुकिंग एट देयर करियर्स। क्यों? क्या फिक्सिंग? 2 लाख 5 लाख, उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करोड़ रुपए का होता है भाई। वो खेल ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनको गेम टाइम मिले और आईएसएल जाए। तो सर इसके यहाँ पे पहले भी इस एक क्वेश्चन उठ रहा है। एक हाँ अभी कौन बोल रहा है? अभी हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आपने जो बोला था कि कलकत्ते के क्लब के साथ आपका कुछ गिला शिकवा रह गया क्या? यहाँ पे ईस्ट बंगाल के साथ भी आपका एक गिला शिकवा था, अब मोहम्मद अली के साथ भी एक आपका गिला शिकवा चल रहा है। हाँ, see, look at my thing now. ईस्ट बंगाल के साथ, इनफैक्ट ईस्ट बंगाल के फैंस ने जितनी मुझे डेथ थ्रेट्स दी हैं और लाइफ में गालियां निकाली हैं, किसी ने नहीं निकाली, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बावजूद when East Bengal needed somebody to stand up for them, I was the first one. I was willing to put my own hard-earned money so that, और मैंने क्या बोला, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं ओन करने में, आपका सिर्फ मैं स्पोर्टिंग राइट्स खरीद के वापस दे रहा हूं आप लोगों को। जब आपका कोई इन्वेस्टर आएगा तो आप मुझे पैसे मेरे वापस कर देना विदाउट प्रॉफिट, और आप खेलो, एटलीस्ट खेलो तो सही। उस टाइम पे ये आ गया था कि दे कांट इवन पार्टिसिपेट इन कैलकाटा लीग बिकॉज दे डोंट हैव स्पोर्टिंग राइट्स। तब मैंने खड़ा हुआ कि मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर इफ आई हैड इवन दिस मच ऑफ थिंग, आई न्यू, एंड फ्रॉम डे वन मैंने इतना सपोर्ट किया मोहम्मदन स्पोर्टिंग का। इनफैक्ट उनका एक पेज है अल्ट्रास का, इनफैक्ट आई वेंट देयर टू दैट पेज, आई वेंट एंड सेड जान मोहम्मदन, बिकॉज आई वाज सपोर्टिंग मोहम्मदन फ्रॉम डे वन। मैंने ट्वीट्स किया इसके बारे में। इनफैक्ट मैंने ट्वीट ये भी किया कि वसीम अकरम और दीपेंदु विश्वास के आने से एटलीस्ट नया चेंज आया, यंग पीपल हैव कम, सो दे आर डूइंग द राइट वे, दे आर ट्रस्टिंग देयर कोच। अब मुझे क्या पता था कि महीने के बाद वही बात जो 1920 से चल रही है मोहम्मदन स्पोर्टिंग में, अब वही बात दोबारा आ गई है। अगर ऑफिशियल्स ने ही सारी टीम बनानी है और मैनेजमेंट ने टीम बनानी है, तो फिर क्या फायदा है कोच को रखने का? We have to see now. I'm so happy for Mohun Bagan and East Bengal because this will not happen with them anymore ever. Why? Because see, one good thing which has come out of it कि उनका corporatization हो गया. Officials will not have a say in the selection of a team. Antonio Habas will not let Debashish Datta or Bose do anything. Same way. By the way, so I've got a question from Minu Mumtaz. I wanted to invest in MSC. In fact, I talked to Wasim and I told him that I'll invest in MSC as a supporter. I don't want to take. कहता majority. मैंने कहा majority दे रहा ही नहीं, मैंने लेना ही नहीं। मैंने 10-20% दे दो, so that तुम्हारे को पैसे मिल जाए क्लब चलाने के लिए। मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। In fact, before the season, I even told them, वसीम को, कि मैं वहां पे आऊंगा। Minerva will set up your junior academy for you in association with Mohammedan Sporting, and we will do it free of cost. मतलब जो हमने यहाँ पे किया है हम आपके वहां पे करने के लिए तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ऐसे ऑफर दे रहा था उनको। रंजीत जी, सर अनवर अली के बारे में आपका क्या बात है? यस, वेरी गुड भाई। अनवर अली के बारे में आपका क्या बात है, क्या कहना है भाई? सो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, सो मैं परसों आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर फॉर ट्रायल्स टिल द 12th। आज फाइनल ट्रायल था।
I came back day before yesterday early morning because हमारा यहाँ पे अनवर अली के साथ मीटिंग था विद नॉट मेरे साथ नहीं मतलब मेडिकल कमेटी ऑफ AIFF के साथ. So अभी तक जितना भी उन्होंने प्रूफ दिया था और जो बात की थी, they were talking about normal cardiologists. So हम भी चाहते हैं कि अनवर अली, आप, मैं, आप, कोई नहीं चाहता कि हम देखें अनवर अली के साथ कुछ होना, गलत होना या उसके साथ कोई हार्ट अटैक होना, कोई नहीं चाहता यार ऐसे. So but we had to make sure कि अब उसका करियर अगर एंड हो रहा है तो ऐसा ना होए कि हमारे को 5 साल के बाद पता लगे कि ये तो गधे थे. अगर आप इंग्लैंड जाके देखते तो अनवर अली जैसे लड़के खेल रहे थे. तो हमने स्टडी की और उसके बाद हमारे को खुद कांटेक्ट किया. इमेजिन सम डॉक्टर, हमने अपील की थी अनवर अली की वीडियो पे, उस पे 2 डॉक्टर्स ने, प्रीमियर लीग के डॉक्टर्स ने फोन किया. उसमें से एक था डॉक्टर संजय शर्मा. नाउ ही, अगर आप सर्च करोगे, ही इज द हेड ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग कार्डियोलॉजिस्ट. मतलब उससे सब कुछ इंग्लिश, ऑल इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स उससे पूछते हैं. वो 1.5 घंटा मीटिंग में आया, उसने अपना सारा रिपोर्ट बना के देखा, उस अनवर अली के सारे टेस्ट दोबारा कराए. उसने कहता मैं इन टेस्ट पे नहीं जाऊंगा, मेरे को ये टेस्ट चाहिए. हमने करवाए और उसको भेजे और उसने फिर अपना रिपोर्ट दिया. उसने कहा कि अनवर अली जैसे 100 लड़के ऐसे हैं जो यूरोपियन फुटबॉल में खेल रहे हैं इस टाइम जैसे, और उससे वर्स, मतलब उससे वर्स कंडीशन में भी 100 से ऊपर लड़के हैं. तो मेरे हिसाब से अगर ये लड़का इंग्लिश प्रीमियर लीग में होता तो हम इसको खेलने देते. तो मेरी अपील ये है कि AIFF के स्टैंडर्ड जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग से ज्यादा है. Obviously not. And they don't understand. It's not an ego problem. This boy will be playing for your country. ये लड़का आपकी कंट्री के लिए 10 साल खेलेगा और मेन सेंटर बैक होएगा संदेश झिंगन के साथ. मेरे से लिख के ले लो. तो आप, not only you are hurting a boy, you are hurting your own country. I am saying if it is safe for him to play in England in the Premier League, then trust me, it is safe for him to play here. सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर आए थे कुछ मोहम्मदन के कुछ प्लेयर को ट्रायल देखने में, जो अभी बातचीत हुआ है हम लोग के पास. यही तो आपने बोला कि आप कुछ यंग लैड्स को, फिर से भाई, हाँ, यंग लैड्स को चांस देने के लिए आप ट्रायल देने के लिए आया था कोलकाता में. तो कुछ लोग यही बात कर रहे हैं कि आपको मोहम्मदन के कुछ प्लेयर को भी लेना है. तो ये कि पूरा का पूरा ही र्यूमर है. नहीं भाई, सी आई हैड कम फॉर माय ट्रायल्स एंड मेरी जो बुकिंग हुई थी हायट की, इट वाज डन बाय द वे. मैंने, जो मेरे को लोग जानते हैं उनको पता है, या तो मैं ITC में रहता हूँ या मैं हायट में रहता हूँ, और मैं कलकत्ता पहला दिन नहीं आया हूँ, मैं 10 साल से आ रहा हूँ. और इसीलिए मेरे को पता है कि कौन सा कमरे नंबर से क्या व्यू आता है, इसीलिए वही कमरा नंबर बुक कराता हूँ. मतलब मेरे को इतना पता है उस होटल के बारे में. एंड आई नो कि वो वाला व्यू सिर्फ 5 कमरों से मिलता है, 219, 319, 419, 519, क्योंकि एक ही कोने वाला है. और वो दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोर वाज बुक्ड बाय आई लीग. मेरा फ्लोर ही अलग है, मेरी एंट्री एग्जिट अलग है. तो बबल का अगर इतना आसान था जाके प्लेयरों से मिलना, तो मैं क्यों इतना पंगा लूंगा. व्हाट्सएप है भाई, व्हाट्सएप नहीं सुना आप लोगों ने? जरूरी मैंने वहां हायट में ही जाके रहना है? मतलब कि इससे बड़ा पागल तो होएगा ही नहीं ना कि अगर वो जाके हायट में जाके रहेगा. क्यों, मैं किसी होटल में भी क्यों भाई? लाइव मैच चल रहा है फुटबॉल का, ऑनलाइन आ रहा है, तो फोन सबके पास है, बबल है, मतलब फोन तो सबके पास है. और अगर मुझे अगर होता ना, ठीक है, वहां पे मेरे को उनको मिलने का मौका मिल जाता, बात अलग है. ना मैं उनको मिल सकता हूं, ना उनसे मैं बात कर सकता हूं, तो फिर मैदान में कुछ सुनाई दे रहा है कि यान लो आपका नया कोच है, ये एक बात सच है? हाँ, यान लो की तरफ आपका राय भी क्या है वो भी जानना चाहेंगे. Yan Law is one of the best young coaches, so I will be very honored अगर वो आके from I League he comes and coaches a state. अभी तो सिर्फ दिल्ली FC जो है स्टेट लीग साइड है, हम तो अभी स्टेट लीग जीतेंगे, उसके बाद जो सेकंड डिवीजन में जाएंगे ना, तो वो थोड़ा पक्का है. मेरे स्टेट लीग में गरवाल है, मेरी स्टेट लीग में सुदेवा है, तो इतना आसान स्टेट लीग नहीं है. उसके बावजूद अगर यान यहाँ पे आएगा, इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी. But point is that I will always be standing for Yan, because I don't think he has done anything wrong. All coaches should have 100% authority over making their teams. There cannot be any question of the secretary or the president of the club telling you कि इस लड़के को ना खिलाओ, इसको खिलाओ, या आपका गेम स्टाइल ये होना चाहिए,
या आपका फॉर्मेशन ये होना चाहिए, आई विल नेवर स्टैंड फॉर इट। आई एम हियर टू प्रोफेशनलाइज इंडियन फुटबॉल, और अगर मैं खुद ही इन चीजों का सपोर्ट करूंगा, आई कुड हैव डन इट इन माय क्लब एंड आई ट्राइड आल्सो। भाई मैंने गलतियां की हैं, पहले साल में गलतियां की थी मैंने, उसके बाद कान को हाथ लगा लिया था। कोच का काम। देखिए आने वाले हाँ। साल पे इंडियन फुटबॉल पे आपका क्या राय है कि किस दिशा पे जाएंगे इंडियन फुटबॉल? अभिरूप देख भाई, अगर जो इन लोगों ने हमारे को प्रॉमिस किया है कि प्रमोशन रेलिगेशन होएगा, तो दैट इज द टाइम जब इंडियन फुटबॉल विल स्टार्ट ग्रोइंग। क्यों? फिर द मोमेंट दैट हैपेंस, देन ऑल द क्लब्स इन द आई लीग आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएसएल। उनका स्टैंडर्ड ऊपर चले जाएगा। अब सारे आई लीग क्लब्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने बजट अपना 50% कट कर लिया है। क्यों? कि अगले सिर्फ 3 साल हमने काटने हैं, यहाँ पे किसी तरह काट ले, रेलीगेट ना होए और यहाँ पे रहे कि जब मौका मिले हम जाने का मौका हो। मगर अगर रेलीगेशन अभी शुरू होती तो ये भी पैसे खर्च कर रहे होते, और इमेजिन देन वी वुड हैव हैड 20 गुड टीम्स। राइट नाउ वी ओनली हैव 10 गुड टीम्स बिकॉज द बजट ऑफ नाउ आई लीग क्लब्स इज 50% ऑफ जो हमारा पिछले साल था। You can ask Gokulam, you can ask Chennai, you can ask Neroka, Trao. Look at the kind of players and foreigners they are signing. वो बाहर वाली बातें रही नहीं गई हैं, जो यहाँ पे मिल रहे हैं वही साइन कर रहे हैं। So the standards of football will only go up in this country when we have promotion and relegation. But if we have that, then it's only positive stuff, भाई. I think instead of trying to see, मेरा मतलब ये है कि you cannot have only buying clubs. पहले आई लीग में मोहन बगान था और मिनर्वा था। तो मिनर्वा जब अच्छा करता था, मोहन बगान अगले साल मेरे 4 प्लेयर खरीदता था करोड़ रुपए के, उससे मेरा अगले साल क्लब चलता था। सारी दुनिया में यही फॉर्मूला है। अब क्या है, अब जो 10 क्लब हैं तकड़े वाले, 11 क्लब हैं रिचेस्ट क्लब, दे आर इन वन लीग। वो खरीदेंगे किससे? बिल्कुल सर ये आप अच्छा आई लीग से खरीदेंगे, बट वो लीग तो तुमने बहुत वीक कर ली है, क्योंकि ना वहां पे प्रॉपर ब्रॉडकास्ट है, ना मोहन बगान ईस्ट बंगाल है, ना क्राउड है, ना स्पॉन्सरशिप है, ना रेवेन्यू है। तो वो लीग आपने बिल्कुल वीक कर ली है। तो उस लीग से कैसे बंदे प्रोड्यूस होंगे? तो क्या खरीदोगे आप? आपने बराबर आपका हाँ अभिरूप, मुझे क्वेश्चन हाँ करने दो। संतुदा बोलो। जो इंडियन फुटबॉल में जो ट्रांसपेरेंसी है, वो ट्रांसपेरेंसी आपने बराबर रखने को कोशिश किया है, फिर भी आपके पर ये सारे आरोप लग रहा है। ये कैसे आप आपने पर्सनली कैसे लिया? ये होता ही है। सी आई एंड दिस नॉट मी, इट्स हिस्ट्री में हम देख लो, जो भी बंदा कुछ नई चीज आके करेगा और वो सक्सेसफुल होएगा उस चीज में, दैट मींस ही इज ट्राइंग टू प्रूव। उसने क्या प्रूव करके दिखाया है कि जो भी तुम लोग अभी तक कर रहे थे ना, सारा नॉनसेंस था। और करने का तरीका ये है, क्योंकि देखो एक नया लौंडा आया है जिसको फुटबॉल के बारे में तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं पता, और उसने सारे टाइटल जीत लिए हैं, तो लोगों को ये पसंद नहीं है बात, और वो करेंगे। बट मेरा होप ये है कि 100 मिनर्वा होंगे तब जाके इंडिया आगे बढ़ेगा। 100 रंजीत बजाज, मतलब जो लोग सिर्फ जूनियर के बारे में सोचे। हम अगर सिर्फ ग्रास रूट डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी सीनियर टीम्स सीधे, भाई देखो इंडियन फुटबॉल कब डेवलप होएगा? जब हमारे क्लब्स वर्ल्ड वाले लोग देखेंगे। हमारा इंडियन लोग खुद, अगर एक मैच आ रहा है प्रीमियर लीग का, अनलेस डार्बी हो रही है प्रीमियर लीग का और आई लीग का, तो हम प्रीमियर लीग का मैच देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेटर फुटबॉल है। जब तक हम अपनी फुटबॉल का लेवल वहां तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारा स्टैंडर्ड ऊपर नहीं जाएगा और पैसा नहीं आएगा। तो यही बात आईएसएल क्लब्स को समझ नहीं आती है कि उनका स्टैंडर्ड, मतलब उनको 10,000 50,000 करोड़ साल के कब मिलेंगे? जब तुम रोनाल्डो प्रोड्यूस करोगे, मेसी प्रोड्यूस करोगे। वो कैसे प्रोड्यूस करोगे? खरीद के नहीं, अपने बना के। तो अगर तुम अभी से अपने जूनियर्स पे पैसे खर्च करो, तो 10 साल में यू विल मेक 10 times द मनी। So the way to make money is to invest in your juniors. Forget about even development. पैसे भी बनाने तो जूनियर में इन्वेस्ट करो, because the standard of your league will go up. If the standard of your league goes up, your club obviously will have higher value. One question for you. ये बिल्कुल सही कहा आपने। Yes, as got an investor, your thoughts. So it's a great, if Mohammed Sporting has got an investor, it's a very brilliant thing. I really hope the investor is good enough. If they qualify, he takes them on to ISL. फिर बात बने, because imagine if we have the 3 biggest clubs of India there, तो 6 डार्बीज तो हमारी ऐसी बन गई भाई, वैसी बन गई हमारी डार्बीज। हमारा को तो मैं तो और कुछ देखूंगा नहीं, इनके मैच देखूंगा आपस में। एंड
like Vansh Ambasta says, how मेरे can ख्याल we से focus on ये grassroots बहुत football? अच्छा I think- क्वेश्चन आया है। Yes. See, that is what I'm saying. If we focus on that, then we have a chance. See, जापान ने 1970 में प्लान बनाया था कि हम 100 साल के बाद वर्ल्ड कप जीतेंगे। फिर उन्होंने पिछले 50 साल में उस प्लान को दोबारा किया रिवाइज। मतलब वो कह रहे हैं कि जो लड़के वर्ल्ड कप जीतेंगे वो साले अभी तक पैदा भी नहीं हुए। उनका प्लान 50 साल का है और हमारे ऑफिशियल जो है प्रफुल्ल पटेल जैसे, वो सिर्फ ये 2014 में कह रहा था 2018 में हम वर्ल्ड कप पहुंचेंगे, 2018 में कह रहा था 22 में पहुंचेंगे, अब वो कह रहा है हम 26 में पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? एशियन कप में तो क्वालिफाई नहीं होते हम, बांग्लादेश को तो हरा नहीं सकते हम, अफगानिस्तान को तो हरा नहीं सकते हम। How are we thinking of qualifying then? So see, first our aim is to be in the top 5 of Asia. And how do you do that? That you can only do if you play more football than them. मतलब अगर वो 40 मैच खेल रहे हैं तो आपको 70 मैच खेलने चाहिए साल के, और आप क्या कर रहे हो? आप 20 मैच खेल रहे हो, आप आधे मैच खेल रहे हो। और एक्सक्यूज क्या है कि क्लब नहीं है। क्लब हैं, आप नहीं चाहते उनको ऊपर लेके आना, नहीं उनके पास पैसे नहीं है। भाई हर लीग में ऐसे क्लब होते हैं। फ्रॉम इंग्लिश प्रीमियर लीग, विगन का जो बजट है 100th है मैन्यू या मैन सिटी के बजट से, तो उसकी वजह से उसको थर्ड डिवीजन थोड़ा खिलाते हैं वो, बट विगन भी साला मैन सिटी को ठोक देता है कभी ना कभी। वही तो फुटबॉल है। लेस्टर सिटी would have never become this strong club जैसे अब कर रहा है unless it had won the title that year. And people see this game is known as the beautiful game because of this, because poor people can do well equal to rich people. मतलब 11 और 11 जब होते हैं तो चाहे तेरे पास 10 करोड़ रुपए है, तेरे को 4 गोल ठोकूंगा साले में, किसमें गरीब और अमीर का होता ही नहीं है। और तुम लोगों ने गरीब अमीर का कर दिया भाई कि सिर्फ अमीर की गेम है। मतलब जो अमीर ओनर्स हैं वो खेल सकते हैं, जो गरीब ओनर्स हैं चाहे उनकी टीम, जैसे मेरी टीम है 4 साल में बेंगलुरु के साथ 4 मैच खेली है, 1 बार हारे हैं, 1 बार ड्रॉ और 2 बार उनको घर जाके हराया उनके। फिर हाउ आर वी नॉट गुड इनफ देयर? नॉट मी। अभी ईस्ट बंगाल मोहन बगान को छोड़ के बाकी सारे क्लब्स ले लो जो कहते हैं कि बजट, चलो ईस्ट बंगाल मोहन बगान का कहते हैं दे कैन बीट अस बिकॉज उनका बजट हमारे जितना है। गोकुलम का बजट तो नहीं है, चेन्नई का, आइसबॉल का, निरोका का, ये सारे ठोकते हैं आईएसएल क्लब्स को सुपर कप में या बाकी फ्रेंडलीज में। सो अगर लेवल ऑफ फुटबॉल इज सेम, हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट एंड से कि उनके पास पैसे ज्यादा है कम? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द टॉप लीग ऑफ द कंट्री शुड ओनली बी बेस्ड ऑन मेरिट, नॉट ऑन मनी। और एक बात, अभी जो ये जो र्यूमर चल रहा था वो भी उनको मिट गया क्या सर? हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो स्टेटमेंट ही चेंज कर लिया। अब वो तो बोल ही नहीं रहे, अब वो बात ही अलग करने लगे हैं। अब वो बात कर रहे हैं Yan is not listening to us, he was not listening, all the players did not like him, they could not understand his system। पता नहीं जो स्टेटमेंट दी, उतनी लंबी स्टेटमेंट दी है उन्होंने हिंदू को, उसमें बात ही नहीं की उसके बारे में, पूरा चेंज ही कर दिया। और वही बात है, इसी बात पे तो मैं नाराज हूँ कि ये बात कोई, और somebody like Dipindu Biswas who's a football player himself, in fact he was my junior in the national team, under 19 खेल रहा था वो, under 17 खेल रहा था उस टाइम पे। I mean for him जो फुटबॉल के बारे में जानता है, ऐसी बात कहना बहुत गलत है किसी के बारे में, बिकॉज वो आपका अखबार में आ गया तो वो हेडलाइन बन गया तो वो सर्च हिस्ट्री में आ जाता है। I don't want my name to be involved there, man, when I've got nothing to do with it. In fact, when I was trying to help your club so much, in fact, I helped your club more than anyone else in the country in the last 4 months. और एक क्वेश्चन है सर प्लीज। हाँ, yes, that see, अगर उनके इन्वेस्टर के पास पैसे हैं तो they should definitely do it. Why? Because Mohammedan Sporting for मेरे लिए Mohammedan Sporting का जो क्राउड है, उनका साला अवे में भी इतना क्राउड है, वो कहीं पे भी जाएंगे इंडिया में उनको क्राउड मिलेगा। और वो किसी क्लब अदर देन ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान के खिलाफ, उनके बाकी आईएसएल क्लब के तो अवे फैंस होते ही नहीं है। सो मोहन बगान, ईस्ट बंगाल and Mohammedan Sporting are 3 clubs which will get away fans, and they're not even traveling fans. वहां पे जैसे मोहन बगान में दिल्ली ट्रैवलिंग फैंस नहीं है, दिल्ली में मोहन बगान के इतने सपोर्टर हैं कि उनके अपना वहां पे दिल्ली मरीनर्स है। तो ऐसे मोहम्मदन स्पोर्टिंग के कम्युनिटी सपोर्ट इज सो मच, सो आई थिंक यस डेफिनेटली दे शुड गो फॉर इट एंड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। बट द बेटर वे ऑफ गोइंग फॉर इट इज कि अगर आप अगले साल, होपफुली इफ दे क्वालिफाई दिस ईयर, अगले साल अपनी आई लीग की टीम इतनी स्ट्रांग बनाओ, वो 15 करोड़ उसको देने की जगह प्राइवेट कंपनी को 15 करोड़ अपनी टीम पे खर्च करो और साले जीत के पहुंचो। और एक क्वेश्चन है सर,
So that's what I'm saying. I think this franchise fees is bullshit. See, अगर मेरा point of view is very straight. अगर BCCI होती, जो क्रिकेट वाली है, वो जितना पैसा कमाती है IPL के थ्रू 10,000 15,000 करोड़, उनको इंडियन क्रिकेट की डेवलपमेंट पे खर्च करना ही पड़ता है. They can't put it in their pocket. Whereas when this league becomes big, if this league starts earning 20,000 crores, it will all go to a private company. They don't have anything to give it back to AIFF. वो सिर्फ 50 करोड़ देंगे AIFF को. उन्होंने लीग खरीदी हुई है. The money will be shared between them and the broadcaster. Even the clubs will not get rich. Why? बाकी सारी दुनिया में सारे क्लब्स पैसे कैसा कमाते हैं? इंग्लिश प्रीमियर लीग कैसे? ब्रॉडकास्ट राइट से. ब्रॉडकास्टर के पैसों से पैसे मिलते हैं. इंडिया में we can never have good money from broadcasters. Why? The broadcaster owns the league. So हमारी लीग का इतना गंदा सिचुएशन में है कि it is owned by a private company and the broadcaster. So we can never make money. We means clubs or AIFF. So the money to be earned from any top league is what improves the grassroots. जैसे क्रिकेट में अब मैं डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड में जाऊंगा, वहां पे मुझे सुपर सॉपर मिलेगा जो 2 करोड़ का होता है. और अगर इमेजिन मेरे हर स्टेट एसोसिएशन को 10 करोड़ की ग्रांट मिले, मेरा फुटबॉल कहां पहुंचे? वो कभी होएगा ही नहीं. बिकॉज अगर 5,000 करोड़ कमाएगा रिलायंस, तो इनको थोड़ा देगा. आपका कुछ प्लान है कि कुछ बेटर प्लान जो इंडियन फुटबॉल को कुछ आगे ले तो भाई I have stopped. 2 मेरे मेन प्लान्स हैं. मेन प्लान्स हैं. फर्स्ट is to get India to the World Cup. और फिर लोग कहते हैं we cannot get there because of 4 or 5 different reasons. One reason they say we don't have enough money. पैसों की बात तो है ही नहीं फुटबॉल में. क्यों? मैंने प्रूव कर दिया पहले सारे टाइटल जीत के. ब्राजील ने प्रूव कर दिया वर्ल्ड कप जीत के. पैसों की बात नहीं होती है. फिर कहते हैं काफी बंदे नहीं खेल रहे इंडिया में. आइसलैंड जो वर्ल्ड कप पहुंच गई है, उसके 3 लाख की पॉपुलेशन है. 3 लाख हमारे दुर्गा पूजा पे होते हैं एक मंडल पे. ठीक है. फिर कहते हैं कि इंडियन के पास जीन्स नहीं है, पावर और स्टेमिना की. साले जो मेडल हमारे को मिलते हैं सारे मिलते ही रेसलिंग और बॉक्सिंग में, और किसी में मिलते ही नहीं है. कौन से पावर स्टेमिना की बात कर रहे हो आप? फिर कहते हैं टीम गेम्स में अच्छा नहीं खेलते. हॉकी में हम जर्मनी को हराते हैं, स्पेन को हराते हैं, नेदरलैंड्स को हराते हैं, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज की फुटबॉल की टीम देखो कैसी है, टॉप क्लास. अगर हम हॉकी में इनको हरा सकते हैं तो फुटबॉल में क्यों नहीं हरा सकते? अच्छा, अगर होता ना, कभी नहीं किया हमने. 1970s तक हम फ्रांस और यूगोस्लाविया को हरा रहे थे. 70s तक, ज्यादा पीछे नहीं है, 70s तक. That means our parents were also alive in that time. So it is possible. कैसे करना है? सुनील चेत्री अगर आज 50 गोल मारे इस सीजन ISL में, do you think बार्सिलोना उसको उठा लेगा? बिल्कुल नहीं उठाएगा. 100 गोल मारने उठाएगा, तब भी नहीं उठाएगा. मगर अगर मेरा अंडर 9 का बच्चा जाके बार्सिलोना की अंडर 9 के टीम अगेंस्ट 3 गोल मारे, और अगले साल अंडर 10 मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट 4 मारे, और उसके बाद अंडर 11 में जाके फ्रांस के PSG के अगेंस्ट 3 मारे, उसको वो उठा लेंगे उस टाइम पे. फिर दैट बॉय कैन प्ले इन द प्रीमियर लीग. So how do you become a world power? You become a world power in football by making sure your boys are playing in the best leagues in the world, not by improving your own league. अगर वो होता फॉर्मूला, तो चाइना इस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन होती. लास्ट 3 साल में चाइना पे ट्रांसफर फीस हैज बीन मोर देन ऑल द यूरोपियन नेशंस पुट टुगेदर, और वो उन्होंने सालों ने इंडिया से ड्रॉ किया आके. अब क्या फायदा हुआ? उनको पता लग गया इस बात का. सो बेल्जियम देखो, वर्ल्ड नंबर 1, उनकी लीग है कुछ ना, घटिया लीग. उनके प्लेयर कहां खेलते हैं? टॉप क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए उनकी नंबर 1 है. तो हमने क्या एम करना है कि 15-16 साल की उम्र तक मेरे जितने वर्ल्ड कप के बैच के लड़के हैं, जो मैंने 5-6-7 साल की उम्र से निकाले हैं, वो 15 साल की उम्र तक किसी वर्ल्ड क्लास एकेडमी में होंगे. सो दैट by the age of 20, if 7-8 Indians are playing in the Premier Leagues all over the world, we will qualify for World Cup also, we will win the Asian Cup also, and forget about qualifying, we'll do very well in the World Cup. Like Egypt is going to qualify for the World Cup, but उनके जो main national team में 22 players हैं, 22 के 22 they are playing in Premier League clubs all over the world. 7 तो English Premier League में खेल रहे हैं. So you need to make sure your juniors get to those clubs. Not by making your senior league so good. You'll never make the World Cup by making your senior league that good.
That is one plan. That is for the juniors. Second is, how do you what do you do? So क्या कर रहा है आई लीग AFF किसको सपोर्ट कर रहा है? सारे सेकंड डिवीजन क्लब्स को, मतलब नॉट सपोर्ट फाइनेंशियली बट एटलीस्ट बातों में तो सपोर्ट कर रहा है आई लीग क्लब्स को, सेकंड डिवीजन को और ISL को. बट मेन हमारे ग्रास रूट अकेडमीज के जो क्लब हैं, जो हमारे हर विलेज में होते हैं, 5th डिवीजन, 4th डिवीजन, 3rd डिवीजन, इन स्टेट्स, इन विलेजेस, इन सिटीज, उनको कोई पूछने वाला नहीं. उसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है AFCAI, एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल क्लब्स एंड अकेडमीज ऑफ इंडिया. उसमें हम क्या कर रहे हैं, सारा कुछ फ्री है. किसी के पास ग्राफिक डिजाइनर नहीं है तो हम उसके फ्री के लोगो बना के दे रहे हैं. किसी को अपना स्पॉन्सरशिप डेक बनाना है, हम उसके लिए स्पॉन्सरशिप फ्री में बना रहे हैं. किसी को कोचेस को अपनी एक्रेडिटेशन देनी है तो वी आर गिविंग हिम ऑनलाइन क्लासेस फॉर कोचिंग. हम कई कोचेस को यहाँ पे ले आए हैं ऑलरेडी, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं मेरे A लाइसेंस कोचेस, और वो वापस जाके फ्री में वापस जाके उनको सिखाएंगे. देन वी आर गेटिंग देम इन टच विद पीपल हु कैन मेक देयर ग्राउंड फॉर फ्री. मतलब कि 10 लाख खर्च करने की जगह हमारे से, मेरे से ग्रास लेके जाओ, यहाँ पे लगाओ एंड फ्री में तुम्हारा 6 महीने के बाद वर्ल्ड क्लास ग्राउंड बनेगा. 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है. Because they are the ones who will produce the next Sunil Chhetri, not the ISL clubs or I League clubs. क्यों? अगर मैं सुनील छेत्री हूं और मैं 6 साल का हूं, मैं अपने बाप को बोलूंगा कि मैं सुनील छेत्री नहीं हूं, मैं 6 साल का ही हूं, तो मैं क्या करूंगा? मेरा बाप को बोलूंगा मैं फुटबॉल खेलना है, तो वो क्या करेगा? जो मेरे घर के सबसे पास में एकेडमी है वहां पाएगा मुझे. और अगर वो उस एकेडमी का लेवल अच्छा नहीं है तो सुनील छेत्री नहीं बनेगा. मगर अगर उस एकेडमी का लेवल है तो सुनील छेत्री प्रोड्यूस होंगे. बिकॉज जब तक वो, मैं जब अंडर 19 इंडिया खेला, पहली बार मेरे को गोलकीपिंग कोच मिला भाई, इंडिया के कैंप में आके. उससे पहले मैं इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गया विदाउट हैविंग दैट. नॉट ओनली मी, ऑल द बॉयज, वी नेवर हैड प्रॉपर कोचिंग. अब जाके थोड़ा बेटर हुआ. सो माय हाउ टू डील विद दिस? See guys, we don't need to do that, because end of the day we are hurting our clubs. See, we need to support them, because I'll tell you when to boycott. If they don't keep their promise, in 2024-25, and they don't, फिर excuse लगा के नहीं अभी भी close league है, even if you're good enough you can't get in, and they don't open it up to everybody else, then we boycott. But if they keep their promise, then no problem. It's at least better than what is going to be. Then yes, see, it was one of the greatest things for me to happen. चक्रवर्ती का जो सवाल है, विकास, जो साहब ने पूछा है विकास युमनम के बारे में, आई एम सो प्राउड बिकॉज दिस इज द चांस. सी, अब ये प्रूफ है जो मैं बात बोल रहा था कि हमारे को जब तक बाहर के लोग नहीं देखते एंड दे थिंक वी आर इक्वल टू देम, देन वी कैन नेवर गेट देयर ना. हमारे को तो साले इंग्लिश प्रीमियर लीग में वर्क परमिट नहीं मिलता कि तुम्हारी तो रैंकिंग इतनी घटिया है. सो इट्स द फर्स्ट टाइम they have said that one of your players can make it. But I know, being honest with you, this player, and there are at least 50 like him in India who are as good. That means who can make it. That means we are becoming world standard now. जब AFC ने ट्वीट किया मिनर्वा अकेडमी, रियल मैड्रिड and Man City, imagine we were in the same line as them. No one has ever mentioned an Indian club in the same line as Real Madrid, Man City, and it was a matter of great proud, not only for me, for India, because we've done it. Now imagine the next step is to make sure we do well in junior tournaments all over the world. If we do that, suppose the Minerva club goes and beats Barcelona, it's as big for India, because some of those boys will actually play maybe one day for Barcelona, and that is when the revolution will start. सर जी, आपके साथ I really hope so much. In fact, I've devoted all my stuff to it and my life towards it now. And I hope, and remember, it has to be understood that it's not in competition with the AIFF. It is to reach out to the people which AIFF cannot help. So AIFF, they say that it's a very big country and we can't do everything. Okay, fine, do your stuff. And we'll reach out to the people you can't help. यान लोग के साथ आपके कुछ बातचीत हुआ है कल इवनिंग से? कल रात को हुआ भाई. At 1 o'clock, he called me in the morning, 1 a.m. In fact, I was trying to call him when I heard the news that he's resigned. I was trying to call him in the evening. He didn't pick up my phone. He kept on cutting it. So he called me back at 1 a.m. And pehle to he was trying to put on a very brave face and smiling, but laughing. But baad mein uska rona nikal gaya, and he started crying. And I felt so bad. In fact, I almost cried because क्या हुआ कि उसने बोला कि मैंने इस क्लब के लिए अपना जान दिया है और मैं असली में जान मोहम्मद हूँ. और उसने बोला कि मैंने इस क्लब के लिए 2 महीने से
अपनी जेब से कहता मैंने 1.5 लाख खर्च किया है और मैंने एक बार रीइंबर्समेंट नहीं मांगा। कहता मेरे को अभी तक कोई सैलरी नहीं मिला है, मगर मैंने 2 बार भी नहीं बोला, मेरे को अपना दिल का क्लब लगता है। कहता मैंने सारे प्लेयर्स जो है ये इनको हाफ प्राइस में दिलाए हैं उन प्लेयर्स को प्रॉमिस करके। वो मुझे पता है, बिल्कुल ठीक बात है, जो उनकी आई लीग और आईएसएल में सैलरीज थी वो नहीं सैलरी मोहम्मदन में बहुत कम सैलरीज मिल रही है। कहता किंग्सली बोल रहा था कि मैंने कहीं और जाना है, मेरे को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उसको मैंने फोर्स करके बुलाया। तो कहता सब कुछ मैंने किया टू मेक श्योर दैट दे विन। मेरा अपना रेपुटेशन था उसमें, मेरा अपना अगर इस टीम को बना के मैं आई लीग ना पहुंचता तो मेरी बेइज्जती होना था कि यान लॉ इतनी अच्छी टीम के साथ भी नहीं पहुंच सका, तो मेरी रेपुटेशन ऑन स्टेक थी, तो मैं तो अपनी जान लगा रहा था। उसके बावजूद मेरे को ऐसा ट्रीट किया गया जैसे मैं नौकर होता हूँ। मुझे टीम मीटिंग में बुलाया नहीं गया, मुझे स्पेशली बोला गया कि तू टीम की मीटिंग के बाहर रहे, तेरा देखते हैं तेरा अगले दिन नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे टीम शीट पे। और मैं छोटा मोटा कोच थोड़ा हूँ, मैं ए लाइसेंस कोच हूँ, मैं आई लीग टीम से आया हूँ और मैंने आई लीग टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। उसके बावजूद मुझे सेकंड डिवीजन क्लब में आके ये बोल रहे हैं। Not only him, in fact, all the employees, they are, see the point is, अगर end of the day सिर्फ एक बंदे या 2 बंदों ने डिसीजन लेनी है, then you should already have I League coaches जो आप सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए लेके आए हो, बहुत अवेलेबल है ऐसे। फिर आपको यान लॉ की जरूरत नहीं है। And to destroy his confidence the way they have destroyed his confidence, he's a young coach. See, this is not a Indian coach for clubs. I don't care about कि इसको club है कि नहीं है. He will do very well for India. हमारे को इंडियन कोचेस लाइक हिम, लाइक बिबियानो, लाइक पिंटो, इन बंदों को सपोर्ट करके बनाना है, बिकॉज वी नीड इंडिया टू हैव एन इंडियन कोच वन डे। सर एक सवाल था मेरा, हाँ सर एक सवाल था मेरा कि आपने यहाँ पे कलकत्ता पे जो ट्रायल किया, जो 2100 प्लेयर्स आपने बोला, तो इनमें से कितने आपको प्रॉमिसिंग लगे? जो नया प्लेयर्स है तो 2100 में से एटलीस्ट 3 हमने सीनियर का किया था, बट 300 लड़के ऐसे भी आए जो जूनियर थे, उन्होंने कहा हम पैसे भी ट्रायल देना चाहते हैं। सो उन 300 में से वी हैव सेलेक्टेड अराउंड 14-15 बॉयज, बट वी विल ओनली कॉल देम जब गवर्नमेंट अलाउ करेगा बच्चों का, क्योंकि बच्चों का भी अलाउ नहीं किया है अकेडमी खोलना वगैरह। बट सीनियर्स में से वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड अराउंड 11 बॉयज। So basically the main core of the Delhi FC team will be made of Calcutta and Bengal boys. Okay. और एक क्वेश्चन That's the Yeah, Sayantan Marinas. Hi Sayantan, I know him. So Sayantan, yes, today's trial. So I was just telling them that we have selected 11 boys, including 3 goalkeepers and 8 outfield players. So उस 3 गोलकीपर में से 2 फाइनल में आ जाएंगे, बट बाकी 8 तो look very very promising and very talented. In fact, we did it in Punjab, we did it in Delhi, and I think the talent here was of a higher standard. तो सर जो यूथ है अभी जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, उसके लिए आपका कुछ मैसेज है? Yes भाई, I just want them to understand no replacement for hard work. अगर आप hard work करोगे, you will get success. It doesn't matter what your age is. You are as good as you are on the field. So अगर आप सोचते हो कि आप 26 साल के हो गए, it's too late, it's not. अनवर अली सीनियर को देख लो, 40 साल का है वो। संदीप नंदी को देख लो, वो 42 साल तक खेला था, पहली बार डेब्यू साल 38 साल 40 साल पे किया था उसने। So there's nothing known as too late and there's nothing known as too young. Look at हिमांशु जांगरा, look at तोयबा, look at छोटे 14-15 साल से शुरू कर रहे हैं। So don't ever think about your age, think about your hard work. अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक क्वेश्चन, हाँ, what are your thoughts on ISL teams going for foreign coaches? See, I don't think that's the right thing to do. Unless you don't have good Indian coaches, then you go for foreign coaches. But I think now we've got good Indian coaches who've got good experience also and who have given proven results. Like, for example, Sanjay Sen, for example, Derek Pereira, for example, चलो आप यान को बोलते हो एक्सपीरियंस नहीं है, बट इनको तो एक्सपीरियंस भी है और इन्होंने तो रिजल्ट भी दिया भाई। एंड तो इनको मौका नहीं दोगे, किस बेसिस पे मौका नहीं दे रहे? क्योंकि वो इंडियन है, क्योंकि हमारा जो चमड़ी का स्किन है सारा डार्क है, इसीलिए आप हमारे को मौका नहीं देते हो। बात तो एंड में यही आ रहा है ना। अगर मेरी क्वालिफिकेशन गोरे के जितनी है, मेरा एक्सपीरियंस गोरे के जितना है, तो मुझे क्यों नहीं मौका मिलेगा मेरे अपने देश में? मेरे अपने देश के लोग साले बाहर से गोरों को बुला के
मौका देंगे जब तक मेरा एक्सपीरियंस, फिर फायदा क्या कोच बनने का। सर एक क्वेश्चन सर, सर, ये है कि रंजीत बजाज कंट्रोवर्शियल और मिसअंडरस्टूड? भाई I think controversy follows people who try to make changes. If you stay under the radar and you keep on saying yes to everybody, और जो पुराना सिस्टम चल रहा है, अगर आप चेंज ना करने की कोशिश करो किसी चीज को, तो कंट्रोवर्सी आएगी नहीं। जैसे ही आप कहीं पे चेंज लाने की शुरू करोगे, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करोगे, टू मेक श्योर जो पुराने बंदे पावर में लेके बैठे हैं उनको हिलाने की कोशिश करोगे, तो controversies will be okay. So I don't mind being in controversies, man. Even if tomorrow I am known as the most controversial person in Indian football, which I am, I don't care as long as I'm being able to give back to Indian football. As I know, मेरे दिल में मेरे को होना चाहिए कि रात को मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, रात को मुझे नींद ठीक आ रहा है, जो मर्जी बोल लें दोनों। रंजीत जी, आज जो एक बैड न्यूज आया था कि कार्ल्टन चैपमैन, उसका प्रयाण हो गया, उसका देहांतर हो गया, तो उसके बारे में आपका थॉट क्या है? I am so sad to think, because bhai, he was I mean, he is like what, 7-10 years elder to me. He was 49, I think 49 years old. Yeah. Yes, 49. that is nothing. I mean, that is nothing. That is when you are starting. अगर कोच होता तो कोच को बोलते कि तेरी जिंदगी अब शुरू हो रही है भाई, 45 47 पे असली। That's what, you know, that's the career of a coach. And as a player, he was one of the greatest players India has ever produced. In fact, Punjab owes so much of his success to Carlton Chapman, because जब JCT I-League title जीता था, he was one of the main members. जो 14 trophies जीते थे JCT, he was one of the main members. So Sukhi sir has great fond memories of him. He was telling me as well. In fact, he is one of the players, most underrated players. मतलब कि yes, I.M. Vijayan was there, all these guys were there, but Carlton Chapman के बारे में जितना उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, हमको ये आदत है इंडिया में कि हम रिस्पेक्ट देता है जब बंदा चले जाता है, उसके बाद सालों का स्टैचू बनता है, उसके बाद याद आती है कि यार ये बंदा तो ठीक था। अब देखो हमारे जो इतने ग्रेट, चुन्नीदा के साथ वाले जो ग्रेट्स थे, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। किसी ने बात नहीं की I.M. विजयन को, उन्होंने अवार्ड नहीं दिया वो इस बारी, और किसी ने बात नहीं की इसके बारे में। जबकि सुनील छेत्री को मिला है और बाइचिंग बूटिया को मिला है, तो I.M. विजयन को क्यों नहीं मिलना चाहिए वही वाला अवार्ड? उसी बेसिस पे मिला है, वही मैचेस वो खेला है, वही उसने गोल किया है। सेम वे कार्ल्टन चैपमैन से अगर हम अपने पुराने लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो जो हमारे बच्चे हैं ना इस टाइम पे जो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो देखेंगे साले यार फुटबॉल में जाने का फायदा क्या है? अगर तुम इतना बड़ा नाम बन जाओ कार्ल्टन चैपमैन, तब भी रिस्पेक्ट नहीं है, इससे अच्छा तो क्रिकेटर बन जाओ, क्योंकि क्रिकेट में अगर मैं मरूंगा साला देश में मेरा डीपी लगेगा कि इस बंदा मर गया पुराना क्रिकेटर, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं होता। तो unless we start giving respect to our former greats, we are never going to grow as a footballing nation. और एक क्वेश्चन है सर, what are the changes you have witnessed since you have started Minerva Academy? Bhai, the changes have been good. See, I really praise ISL for some things. That means off-field professionalism aa gayi hai. That means the grounds, the facilities, the infrastructure, the coverage, everything is great. On-field football has remained the same level, because if that was not the case, then I-League would have been a big difference. So their changes are there, and that's for the good. But if now we see the same changes where they made it, अभी इन्होंने एक rule निकाला developmental players का, तो I don't agree with that rule कि developmental players 2 होने चाहिए। developmental players का मतलब है कि तुमने खुद develop किए। developmental players का मतलब ये नहीं कि under 21 और मैंने कहीं से खरीद लिए मिनर्वा से जाके। इमेजिन अगर हम ये रूल बनाएं कि हर एक टीम को प्लेइंग 11 में 2 डेवलपमेंटल प्लेयर्स रखने हैं, हर एक टीम अपनी रेजिडेंशियल एकेडमी पे पैसे खर्च करेगी और फिर 100 मिनर्वा बनेगी, और 100 मिनर्वा बनेगी, हमारा देश आगे जाएगा। वी नीड टू हैव डेवलपमेंटल प्लेयर्स डेवलप। अब ये बोलते नहीं यार क्यों फायदा? भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को पैसों की खरीदने की डेवलप करने की जरूरत है नहीं, मगर 60 ईयर से आज तक एक बार ऐसा मैच नहीं हुआ जब तक उनके एकेडमी का लड़का टीम शीट पे ना हो। 60 ईयर से बार्सिलोना को एकेडमी रन करने की जरूरत है, वो साले कोई भी खरीद लें जाके। दे हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमी। ओके, सो हम लोग आपका अनुष्ठान का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसका एंड में आ गया है, तो थैंक यू वेरी मच
for being with us. Guys, And always a pleasure to be here. Thank you, for Ranjit ji. everybody. For everybody, please like, share, subscribe to the calcuttamirror.com, which is the best Bengali media outlet out there. So thank you so much for having me, guys. Love you all, and joy Bengal. Thank you, Ranjit ji. Thank you, guys. থ্যাংক ইউ। তো দর্শকদের জন্য জানাই, এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন রঞ্জিত বাজাজ, এবং আমরা আলোচনা করলাম আমাদের ভারতীয় ফুটবল নিয়ে, এবং ওনার সম্পর্কে যা যা রিউমার্স ছড়িয়েছিল গতকাল পর্যন্ত, আজকে সমস্তটাই মিটে গিয়েছে। এটা একটা খুব ভালো খবর। তো আমরা আশা করব যে আমাদের অনুষ্ঠানটা আপনাদের খুব ভালো লাগলো, আপনারা আমাদের সঙ্গে রইলেন, ভালো লাগলো। আমরা আগামী দিনেও চেষ্টা করব ভারতীয় ফুটবলকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে পৌঁছে যেতে, এবং ভারতীয় ফুটবলকে সুন্দরভাবে আরো নতুন করে এবং সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক অবস্থা দেখতে চাই, এটাই আমরা সবসময় চাইবো। অভিরূপ, তোমার কি মন্তব্য? মানে যা আমরা শুনলাম, রঞ্জিত বাজার যা বললেন, সেই জায়গা থেকে ভারতীয় ফুটবলের যে পরিস্থিতি। দেখো রঞ্জিত জি যেটা বলেছেন, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে উনি প্রত্যেকটা আমাদের যে প্রশ্ন ছিল স্পষ্টতার সঙ্গে এবং নির্ভীকভাবে জবাব দিয়েছেন, বুক চিতিয়ে জবাব দিয়েছেন। কোনো জায়গায় উনি কিন্তু কোনো ফ্লজ রাখেননি। এবং উনি যেটা বলছেন যে সব থেকে বড় কথা যে গ্রাসরুট লেভেল থেকে আমাদের ইনভেস্ট করতে হবে যদি আমাদের বড় প্লেয়ার তুলে আনতে হয়। এটা একদম সত্যি কথা যে গ্রাসরুট লেভেল থেকে যদি ইনভেস্ট না করি আমরা, তাহলে কিন্তু সত্যিকারের একজন বড় প্লেয়ার উঠে আসবে না। আর একটা খুব আমার মনে হচ্ছে যে সব থেকে ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট যেটা ছিল এই কনভারসেশনের, সেটা হচ্ছে যে উনি যখন বললেন যে বিভিন্ন যে আইএসএল ক্লাবগুলো রয়েছে তাদের ডেভেলপমেন্টাল প্লেয়ার্স তৈরি করা উচিত। আমার মনে হয় এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কারণ আমরা যদি ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও দেখি, তুমি দেখবে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ছেলে তৈরি করছে, তারা এসে আইপিএল খেলছে, যেমন ধরো জাসপ্রীত বুমরা। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার এখানে আমাদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না ফুটবলের ক্ষেত্রে। তো এটা আমার মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট উনি কথা বলেছেন, এবং ইয়ান ল সম্পর্কেও উনি ওনার মতামত স্পষ্টতার সঙ্গে জানিয়েছেন, এবং কোনো প্রশ্ন আমার মনে হয় উনি এড়াননি, এবং সেটা খুব ভালো। ঠিক আছে অভিরূপ, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, এবং দর্শকদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য। আপনারা দেখছেন আড্ডা ৮, এবং প্রতিদিন রাত ৮টায় আমরা নতুন নতুন টপিক নিয়ে, অবশ্যই ফুটবল ক্রিকেট সংক্রান্ত সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের মূল উদ্দেশ্য, মূল আলোচনা। এর সাথে সাথে আমরা আগামী দিনে চেষ্টা করছি নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসতে। আপনারা এভাবেই আমাদের সাথে থাকুন, পাশে থাকুন, সঙ্গে রাখুন। আমি সন্তুধর, আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমার সঙ্গে থাকার জন্য। আজকের মতো আমরা লাইভ শেষ করছি, আবার দেখা হবে আগামীকাল।